only are we going to talk about the CAT application process, we are also going to talk about the top institutes which accept the CAT score, and we are also going to talk about the other exams that you should appear for and what are the B schools aligned to those exams. There might be many doubts in your mind, kahan apply करें, क्या करें, etc. etc. We'll follow the usual modus operandi. In case you have any questions to ask, please feel free to use the chat box for the same. But first of all, we will begin with a dream list. We'll begin with a dream list, that is the top 15 MBA schools in India. Now, please remember one thing. When you talk about all the B schools in India, you first of all have generalized B schools. What are general MBA programs? General MBA programs are, am I audible to all of you? Yes. So, general MBA programs are programs in which the first year is generalized. You are taken through all the subjects of management, a bit of account, a bit of economics, a bit of finance, a bit of HR, a bit of marketing and everything. And at the end of the first year, you decide what you wish to specialize in, right? And in the second year, you have this system of electives. You have to, for example, if you talk about IIM Ahmedabad, you have to pick up 14 electives. If you take 8 from finance and 6 from operations, you automatically become a finance and ops guy, right? If you pick up, say, 10 from marketing, 4 from HR, you could become a predominantly a marketing guy. So all this issue about specializations, in most of the cases, you have to decide in the second year, after your first year is over, right? Of course, there are some combinations which are not allowed by B schools. For example, many B schools don't allow finance as a major and marketing or HR as a minor. Okay, because if you want to take a marketing and finance and marketing, something is wrong with your head. That's what they believe. Okay, so this is the process of MBA in India. Remember that. Okay, and your summer placement would be an indication. Your summer placement would be an indication of what you wish to specialize in, basically. ठीक है? तो summers ऐसे ही लेना पड़ता है आपको, जिसमें आपको specialize करना है. But even before we start, let's talk about a very crucial issue. Is CAT going to be postponed? Because as of now, the date for CAT is 29th November. And 2 days ago, a petition was filed in some court, okay, that all the entrance exams which are to be conducted in October and November, they should be postponed because of the threat of the pandemic. Okay. But today, in this session, we will assume that CAT is going to take place on that day itself, 29th November. Okay. So now, let's start with a few precautions. Yes, I mean, I don't know what will happen. Let's start with a few precautions that you need to take. First thing, create a separate mail ID for this process. Okay, please don't use the email ID that you have, because you have no idea about the quantum of mails that you are going to get.
Okay. So please ensure that for the entire MBA process, you have a separate mail ID, which is formal in nature. Okay. You can add some outlandish words like MBA aspirant, whatever. Okay. But please ensure that you create a separate mail ID for the entire MBA entrance application system. Okay. नहीं तो आप आपके नॉर्मल ईमेल आईडी में कौन सा मेल कब स्पैम में जाएगा और उसमें आपको पता नहीं कितने मेल्स आते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर एमबीए कॉलेज का मेल ढूंढना वो बहुत दिक्कत होने वाली है, राइट? So first of all, please have a separate email ID for this entire process. I'm not saying a different email ID for every institution. For the entire MBA entrance range of things, right? For God's sake, please have a separate email ID. It is absolutely essential. Okay, and there would be times when you check the mail ID. Antriksh, I don't have any answer to that question. Okay, as of now, I don't think a postponement of CAT is possible as of now. Okay, but that's just my opinion. That's just my opinion. The IIMs have started this particular batch, okay, through online learning. People who were in the first year now have gone into the second year, and people who joined the B school and are in the first year, the IIMs have started their classes online. Okay, so maybe they'll come out with an option where you can take the entrance test from home. Maybe, we don't know. We have absolutely no idea about that. Okay. So the first thing, as I said, create a separate email ID for the entire MBA entrance procedure, all the application forms, etc. Right? And within that, you need to have a separate folder for each exam/B school. What I would suggest is, you have a folder in your mail ID. People are still joining in. One folder may be for CAT, one folder for CAT Allied, one folder for ZAT. Oh God. One folder for ZAT, one folder for ZAT Allied, okay, one folder for maybe NMAT, one folder for SNAP, okay, and so on, depending on whatever you are applying for, depending on the exams you are applying for, okay. इतनी मेहनत आप स्टार्टिंग में कर लेंगे तो आपकी बाद में बहुत मेहनत सेव होने वाली है. Okay. The third thing, these are the things you need to do before you start the application process. Remember, not after, क्योंकि वो बाद में फिर वो mails sort करना वो सब, it's better if you are not put through that torture. Okay. So before you fill up the CAT form, okay, please have this system in place. Don't try to introduce a new system when things have already started rolling. Create your system before things start rolling. The third thing that you need to do, my God. The third thing that you need to do, PDFs of important documents on your computer in one folder, and keep this folder on desktop. Okay,
Don't keep it into D drive and some other sub drive and so on and so forth. तो वक्त तो मिलेगा ही नहीं. ठीक है. Now what are the important documents? 1, your signature. 2, passport size photo. 3rd, Aadhaar card. 4th, mark sheets. 5th, अच्छा signature हो गया. These are the 4 things. ठीक है. मार्क शीट्स कब के स्पेसिफाई करना बहुत अच्छा होता है. 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. ठीक है. इतनी बेसिक तैयारी करने के बाद आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू कीजिएगा प्लीज. ओके. क्योंकि यू हैव नो आइडिया आपको इतने फॉर्म्स भरने पड़ेंगे. हर एक चीज फेस करते करते हालत खराब हो जाएगी. Then the next precaution that you need to take. Overall point number 4. Save a PDF of every form you submit. Okay. In some institutes, for example, you need to write a detailed answer in the form regarding why do you want to do an MBA. FMS Delhi, for example. Why do you want to do an MBA? Okay. Now remember, you will be filling the form in November. You will be appearing for your interview in March. Okay. फॉर्म में why you want to do MBA कुछ और ही लिखा है और आपको याद ही नहीं है आपने फॉर्म में क्या लिखा था. और वो फॉर्म इंटरव्यूअर के सामने है. वो फॉर्म देख के आपको फिर से वो पूछ रहा है, सो व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA. 4 महीने में तो आपको पता है क्या क्या बदलता है आजकल. तो जिंदगी का MBA करने का उद्देश्य नहीं बदल सकता क्या. राइट. सो टू गार्ड अगेंस्ट दैट, क्योंकि बाद में जब कॉल जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए आपने फॉर्म में क्या लिखा था. Is it clear? And again, I am repeating, these are the precautions, these are the things you need to do. 1, 2 and 3 are things you need to do before you start filling up before you start the entire process of filling up forms. We clear on this? Are we clear? No letter is required for final year students. Okay, good. I hope you have noted them down. Okay, because I am going to erase it now. Right. So the next thing. तेलुगु में एक त्यागराज कीर्तन है. आज कुछ लोगों के नाम पढ़ के ना मेरे को याद आ रहा है. जाने दो. And अब let's take up the top 15 institutes. Remember, this is not the list according to any magazine, right? This top 15 list is based on my experience, a modest 20 years of coaching for CAT, okay? And my interactions with the students. All the mark sheets, Garima, to be on the safe side. Even the graduation mark sheet for the last semester for which the result has been obtained would be good enough, okay? But to be on the safe side, graduation के आपके सारे मार्क शीट्स और वो फाइल नेम जो आप सेव करते हैं ना, उसका नाम ठीक से देना.
अटैचमेंट करते वक्त, नहीं तो अलग गलत ईयर में गलत मार्कशीट, बिकॉज सम इंस्टीट्यूट्स want to have all the mark sheets. Some institute want only a final year mark sheet. Some institutes don't even want a mark sheet at the application stage. But still, ये तैयारी आप अभी कर लो. That's right. Right. So this top 15 institutes list is based on my interaction with the students who are there, what they keep on telling me about the B schools, and my own experience of these B schools. Okay, this is not the list from any magazine. Right. Now, without a shadow of doubt, the top 3 are fixed. These are fixed. Okay, there's no point in getting into इनमें से फिर अहमदाबाद अच्छा है कि बेंगलुरु अच्छा है. एक चीज याद रखिए, अगर आप अप्रैल 2021 में ये पोजीशन पे पहुंच गए कि आपको IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु दोनों से फाइनल एडमिशन ऑफर आया और आपको चूज करना पड़ रहा है, तब मेरे से पूछ लेना ये दोनों में से बेटर कौन सा. ठीक है, तब तक ये सवाल के जवाब का कोई मतलब ही नहीं. I hope you have got that subtle hint. Okay, so this is 1, 2 and 3 straight away without any doubt. There is no point in arguing. Okay, then you have a steady 4, which is IIM Lucknow. This is a steady 4. Okay. ऊपर का मिटा देता हूं मैं because this is going to be very, the space is not going to be sufficient. So where were we? IIMs A, B, C. Okay. For a constant IIM L. 5th and 6th, there's a tie between FMS Delhi and XLRI Jamshedpur. Both are equally good. If you get a final admission from both FMS and XLRI, it depends on what do you want to do in your career. If it's human resource, go to XLRI. If it's not human resource, go to FMS Delhi. It's that simple. Right? 7th and 8th, you have a constant. I am Indore and I am Kozhikode. Okay. So ये हो गया 3 and 1 4, 5 and 6, 7 and 8 institutes. Okay. Now there is a tie between 4 or 5 different institutes at the next level. Okay. SP Jain Mumbai, IIFT Delhi, not Kolkata. SP Jain, IIFT Delhi, BBIMS, Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies in Bombay. They must be the top B school through CET. SP Jain, IIFT Delhi, JBIMS, MDI Gurgaon, and NITI. NITI only if you want to get into operations management. NITI में जाके आप मार्केटिंग अगर MBA करोगे तो आपको फिर से वही अशोक लेलैंड में ट्रक बेचने की नौकरी मिलने वाली है. Okay, if you are inclined towards operations management, in the field of operations management, NITI is in the top 10. That's all I can say. तो ये है 1, 2, 3, 4, 5. 8 और 5, 13. ठीक है. 14th and 15th, you can consider it a tie between NMIMS Mumbai and
IIT Bombay. The MBA program of IIT Bombay. These are the top 15. Remember, we are talking about generalized B school because operations management is also considered to be a part of conventional MBA itself. Right? There are many more institutes which are excellent, but they don't offer the general MBA program. They don't offer the general MBA program. What they offer is maybe MBA in brand management, MBA in communications management. XLRI, I have already said, no? Xavier's is XLRI. Xavier's Labor Relation Institute. Yes, SP Jain has not in the top 15. SP Jain has some negative reviews, no doubt. Okay, but based on the interaction with the students who have gone there 2 years ago, the last year and 3 years ago, the placements are fantastic, right? Because that's the first thing you look at. The placements are fantastic. The college is very good. Thoda sa, it's more academically inclined than the other B schools, right? And IIM Lucknow and FMS got into a spat last year. You know about this? The Quora spat between IIM Lucknow and FMS Delhi. Have you heard about it? Okay. So it started with somebody putting up an innocent question about FMS. How are the placements? Okay, because and the guy said he has to choose between FMS and IIM Lucknow. The person who put up the question, he had final admission offers from IIM Lucknow and FMS, and he had to choose between the two. So he mentioned that in the question and said, how are the placement option at FMS or something like that. So a student from IIM Lucknow, who was I think in the PlaceCom of IIM Lucknow, he wrote a long diatribe against FMS Delhi. ठीक है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता, सरकारी है, इतने कम फीस में वो भी क्या ही पढ़ा लेंगे तुमको, उनके सारे प्लेसमेंट्स ओवर हाइप्ड हैं, ऐसा वैसा जम के. And the letter and the answer point was not written in a very formal way, if you know what I mean, right? There were some asterisk marks, there were some @ marks, etc., in the answer. Okay. FMS took the guy to court. FMS took the guy to court, right? और लंबा चौड़ा मामला चला है. फिर उसके रिस्पॉन्स में कुछ FMS के बच्चों ने फिर अपना दावा बोल दिया अलग से. ठीक है, तो आप ऑनलाइन जाएंगे ना, आपको नेगेटिव रिव्यूज ऑलमोस्ट हर बी स्कूल के मिलेंगे. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आई एम अहमदाबाद में देयर इज अ कंप्लेंट दैट फाइनेंस की फैकल्टी अच्छी नहीं. That's a complaint which has been received by me directly by a student who's currently studying there. Okay, नहीं, ये 15 के अलावा नहीं. These are the top 15, right? Now the point is, by April 2021, if you make it to any of these 15 places, right? There's no point in asking जाऊं कि नहीं. बिंदास घुस जाओ, राइट? ये 15 के अलावा आपको अगर फाइनल एडमिशन ऑफर आता है, तो देन यू हैव टू think about what are the other options you have. Were you satisfied with the level of preparation you did this year? Would it be better if you spend 1 more year in a job and try again, or maybe 2 years and then go directly for GMAT? लेकिन abroad का भी आजकल कुछ सिखावा ठीक नहीं है. ओके, ये सब सवाल आएंगे अगर ये टॉप 15 के अलावा आपका सिलेक्शन हुआ तो. ओके, इफ यू आर इन दिस टॉप 15, आंख बंद करके एडमिशन ले लेने का, वापिस बता देने का हमको आया है करके फाइनल एडमिशन तो अच्छी रखिएगा, लेकिन बिल्कुल अंधा होके ज्वाइन कर लेने का, सवाल पूछने का नहीं. Is this clear? It's not necessary. It has some weightage, Antariksh. It's not necessary.
अब ये बी स्कूल्स अगर आप देखेंगे तो मजा देखिए, ये तीनों कैट है, ओके, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये कैट ऑब्लिक जैट है, ओके, ये कैट है, ये भी कैट है, और ये भी कैट है। ये क्या है? ये है एनमैट, ओके, और ये है एक्सेटी, ये है IIFT। I have already answered the question about symbiosis. I won't reiterate my answer. I won't re-emphasize on that point. Symbiosis, you can place SIBM at 16th position, no problem. SIBM and SCMZ, you can place them at the 16th position. Now the beauty of this is, if you don't perform well in CAT, 11 out of the top 15 are Tata bye-bye. अरे सर वो 25 के बाहर आएगा, आप सिर्फ इन बी स्कूल्स पे फोकस कीजिए, मैं हर एक बी स्कूल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। IIMI Delhi is beyond 25। सर वो रैंकिंग वैंकिंग आप, आई थिंक आप इतने मैच्योर हो कि MBA की मैगजीन्स में रैंकिंग किसके भरोसे छपती है, ठीक है, आप इतने मैच्योर तो हो ही कि वो समझ सकते हैं आप, है कि नहीं? तो व्हाट कैन आई से, based on my experience, my interaction with the kids, these are the topics. So that is why, remember, CAT becomes very important, because if you don't do well in CAT, 11 to 12 out of the top 15 are straight away out. Got the idea? Okay. So ये हैं the conventional B schools. Specialized B schools का हम पहले CAT का प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। Okay. Okay. So let me open. It's there on their websites. This is one question I don't understand again. So let me just address a few pressing issues here. ये बी स्कूल के कॉल के लिए कैट में कितना परसेंटाइल चाहिए? रिमेंबर, सिस्टम बहुत अलग है, ओके। अभी सिस्टम क्या है आप पहले वो समझ लीजिए। आपके सारे क्वेरीज का मैंने प्रतिज्ञा ली है, आज मैं निवारण करूंगा ही, मतलब करूंगा ही। फर्स्ट इज द स्टेप 1, हाउ डू दे डिसाइड कि किस किस को कॉल करना है सेकेंड राउंड के लिए, ओके। वो प्रोसेस आप पहले थोड़ा समझ लीजिए, तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। First question they ask is the written test percentile above a certain level, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ, ओके। कट ऑफ लो भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद में 85, 85, 85 एंड 90 था किसके साथ। That means in every section you need to be above a certain percentile, and overall you need to be above a certain percentile. ठीक है? This is both sectional and overall. Okay. If yes, step 2 आता है,
calculate. This is how a B school is thinking. Calculate the profile score. Okay, that means if your score is below that threshold, they don't even take a look at your profile. If your B school is above a certain threshold, then they will take a look at your profile and they will calculate a profile score. अब प्रोफाइल में क्या क्या आता है? 10th, 12th, graduation, work ex, academic diversity factor, gender diversity factor. ये 6 एंड हर बी स्कूल का फॉर्मूला अलग है, रिमेंबर, ठीक है? एंड थर्ड, दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, a percentile score based on the percentile you have got. मतलब ऐसा नहीं 99 से 99.5 परसेंटाइल को कितना स्कोर मिलेगा, एक्स स्कोर मिलेगा. 99.5 to 99.9 को x plus 1 मिलेगा स्कोर, some random number. 95 to 99 परसेंटाइल में जो है रेंज में, उनका स्कोर सेम रहेगा. मतलब 95.1 हो या 98.9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों स्कोर उतना है. मैं रफली बैंड्स बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही बैंड्स रहते हैं, उनका एक अलग स्कोर. 90 to 95 जो है वो रेंज में जितने परसेंटाइल है सबका सेम स्कोर. यू गॉट द आइडिया? ठीक है. या फिर वो एक फॉर्मूला करते हैं कि आपका परसेंटाइल इतना तो स्कोर इतना. फोर्थ, कंबाइन द परसेंटाइल स्कोर एंड द प्रोफाइल स्कोर बेस्ड ऑन और बेस्ड ऑन नहीं बोलूंगा मैं, दैट स्टोरेज, सम फॉर्मूला. ये हर बी स्कूल का अलग है, ध्यान रखिएगा. प्रोफाइल कैलकुलेट करने का मेथड, और हर बी स्कूल का हर साल चेंज होता है. दे डोंट कीप इट कांस्टेंट. और अब आप बोलोगे परसेंटाइल कट ऑफ कितना है, क्या जवाब मिलेगा आपको? कंबाइन द परसेंटाइल स्कोर एंड प्रोफाइल स्कोर बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला. IIM Calcutta gives roughly 60 to 70% weightage to the percentile score and only 30% weightage to the profile score. वो 30% weightage में work ex एक component है. अब आप सोचिए कितना weightage होगा उसका. Have you understood the point? But IIM Lucknow, it gives only 40% weightage to the percentile score and 60% weightage to the profile score. तो उसमें ऑब्वियसली वर्क एक्स, एडीएफ, जीडीएफ का ज्यादा होगा ना. अगर मैं ओवरऑल प्रोफाइल स्कोर को ही 30% वेटेज दे रहा हूं, उसमें से वर्क एक्स एक क्राइटेरिया है, तो आप ही सोच सकते हैं कितना होगा. अंतरिक्ष, इट्स देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ एवरी बी स्कूल. IIM अहमदाबाद का अलग है, IIM बेंगलुरु का अलग है, IIM कलकत्ता का अलग है, लेकिन वो जो एडमिशंस हो गए उसका है. सो कंबाइन द परसेंटाइल स्कोर एंड द प्रोफाइल स्कोर बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, गिव अ WAT plus PI call based on this. This is the process that they follow. Okay. Now, suppose you actually get to the data website of a B school, निकालते हो criteria. The point is that was the criteria for the last year. What about the criteria for the next year? We don't know. Some B schools tell it to you in advance.
some B schools first of all give you the GDPI offer and then they reveal कि GDPI उन्होंने कौन से बेसिस पे दिया. Got the idea? तो अंतरिक्ष आप वहां पे जाके वो PDF डॉक्यूमेंट करके पढ़ भी लेंगे ना, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि nothing can change the fact that the higher the percentile, the better your chances. खत्म. ये सब मैंने बताया क्योंकि आपकी क्वेरीज थी, राइट? बट रिमेंबर, द ग्राउंड रूल इज बेटर द परसेंटाइल, बेटर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉल. इट इज दैट सिंपल. क्योंकि प्रोफाइल में जितनी भी चीजें वो हो गई है ना बॉस, पढ़ के कर क्या लोगे तुम, ये बताओ. Some people think it's unfair. That's like telling you, I mean, उसके बाद वो जब GDPI होता है, फाइनल एडमिशन की लिस्ट आ जाती है, उसके बाद वो बताते हैं हमने सेलेक्ट कौन से बेसिस पे किया. So it's like telling to you the rules of the game after you have played the game. Okay. क्या बोलूं? ये होती है सर प्रोसेस. तो इसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे ये LR का प्रॉब्लम बनता जाएगा, आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा. आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है ये. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल नाउ, योर रिटर्न टेस्ट परसेंटाइल. फोकस ओनली ऑन दैट. ADF and GDF, I hope everybody knows. ADF is academic diversity factor. That means if you are a non-engineer, you get points. If you are an engineer, you get 0. GDF is the gender diversity factor, which means if you are a boy, you get 0. If you are a girl, you get 2. ठीक है? अच्छा, और ये certain level जो मैंने बोला है ना, right? ये level open category के लिए सबसे ऊपर है. उसके बाद OBC, SC, ST, एक्सेट्रा. तो वो लेवल कम होते जाते हैं, ध्यान रखिए. You have my sympathies, Antriksh. We are done with this. Are we clear? Okay, right. Now once you are called for the VAT PI, आपका VAT स्कोर आएगा, आपका PI स्कोर आएगा, आपका CAT स्कोर रहेगा, आपका प्रोफाइल स्कोर रहेगा. ये चारों को फिर से कंबाइन करके एक ओवरऑल स्कोर निकालेंगे और बताएंगे आपको फाइनल एडमिशन मिला कि नहीं. So remember, just because you have got a VAT PI, that does not mean the role of your percentile and the role of your profile has ended. They take that in the second round also. आपका वैट स्कोर आएगा, आपका PI स्कोर आएगा, इसके साथ फिर से बाकी 2 कंबाइंड होंगे. अब ये 4 कंबाइंड होंगे कोई अलग ही फॉर्मूला में, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया इनको बुलाना है, फाइनल एडमिशन देना है या नहीं ना देना. You, my personal opinion, unnecessarily complex. बट इंडिया में क्या करेंगे यार, पॉपुलेशन इतनी है, पूरे 3 लाख कैट एस्पिरेंट से ये लोग बात तो नहीं कर सकते ना. सो रिमेंबर, कैट इज नॉट अ सिलेक्शन एग्जाम, कैट इज अ रिजेक्शन एग्जाम. आई होप यू गॉट दैट. क्योंकि मैक्सिमम जनता आईएम्स की रिजेक्ट होती है कैट. एनीवे, चलिए. Okay. We'll come to that. We'll come to that. 1 minute. Now, I have no problems in sharing my screen with you because, as you see, it's very clean. All of you are able to see the screen, right? So this is
दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ सब लिखा है कोविड-19 क्राइसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस फॉर कैट एक बटन दिख रहा है, नो मोर। अब यहाँ पे क्विक टूर में जाइए, ओके। कैट 2020 रजिस्ट्रेशन गाइड, सबसे पहले ये पीडीएफ पढ़ना है आपको, ठीक है। और ये कैट 2020 रजिस्ट्रेशन वीडियो, ओके। यहाँ नो मोर में कैट 2020 एलिजिबिलिटी है, सिंपल है। ओपन कैटेगरी 50% ग्रेजुएशन, रिजर्व कैटेगरी 45% ग्रेजुएशन। और यहाँ पे देखेंगे सब चीजों का स्क्राइब एफिडेविट, यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल suppose you are from the PWD category and someone else is going to take the CAT for you. You are taking somebody else as a scribe, okay? Maybe you are visually impaired and you are taking somebody as a scribe. तो उसका एक एफिडेविट होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, ओके। ये सारी सर्टिफिकेट्स हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए रिजर्वेशन आ चुका है, SC ST PWD फॉर्म 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे सर्टिफिकेट्स प्रोफार्मस यहीं पर हैं, राइट। कैट 2020 रजिस्ट्रेशन वीडियो, वॉच दिस वीडियो। आई थिंक यहाँ पे एक लेडी रहेगी जो अंग्रेजी एक्सेंट में आपको बताएगी कि कैट का फॉर्म कैसे भरना है। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो बिफोर यू फिल अप द फॉर्म, ओके। सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर, सो लेट्स रजिस्टर। The best way to learn is to do it. ठीक है, no problem. I am on Google Chrome only. Name of the candidate. 10th SSC certificate, क्या नाम था वो मेरा? I am registering right in front of you. Oh my. सही डालो क्या इसमें? ठीक है, सच्ची डाल देता हूँ, no issue. भाई साहब तेरे को तो डिकेड ही चेंज करना पड़ेगा यार। पीछे जा भाई। 1900 to 2007, हाँ हे चालेल आपल्याला। This seems to be the closest. 1975, correct? February 23rd. ईमेल एड्रेस, आप इधर ईमेल एड्रेस वो आएगा, आप जो नया वाला ईमेल आईडी क्रिएट करने वाले हैं, ओके। कंफर्म करूँ क्या? ठीक है। I think I am in for some embarrassing moments. I should have thought this through. Select country India, ये भाई साहब। मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है तो लिखने में कोई हर्जा नहीं है। कंफर्म कर देता भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। जनरेट OTP। टू AF 786। वाह क्या बात है, 100% आई एम अहमदाबाद कॉलेज। देखो मुबारक नंबर आ गया मेरा 786। OTP आलाच नाही मला। हाँ अब आएगा शायद, आ गया। 580241, ओके। ओके 580241 validate OTP। देख रहे हो ना आप सब लोग, प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। ये आपके सवालों का जवाब देने का सबसे सही तरीका है। आई अग्री, सबमिट। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। नेवर बाबा, नहीं जो मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आ गया गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक बार डिटेल्स, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें 6 अलग अलग सेक्शंस रहने वाले हैं। हाँ ना मेरे भाई, राइट। पर्सनल डिटेल्स,
क्लियर? अब इसमें देखिए नीचे एक बटन है save and proceed, save and continue. Okay, after you fill up every section, you have to click on save and continue. Your application is registered successfully for CAT 2020 user ID password. Now complete your application submission. तो ऐसा एक SMS आएगा आप सबको जिसमें लिखा रहेगा कि आपका एप्लीकेशन आपका यूजर आईडी क्या है और आपका पासवर्ड क्या है. ठीक है, कहीं लिख के रख लेना आप, नहीं तो आपके जो आदत है जैसा वोकैबुलरी के नोट जैसा लूज पेपर्स पे बनाते फिर 3 दिन बाद वो दिखते नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. तो एज आई वाज सेइंग, फॉर एवरी कॉलम दैट यू फिल अप, पर्सनल डिटेल्स आप फिल अप करोगे, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो फिल अप कर देते हैं बॉस. नॉट एप्लीकेबल. देखा, लिबरलिज्म, ट्रांसजेंडर के अलग अलग कैटेगरी है. इस बार नेशनैलिटी इंडियन, आधार कार्ड नंबर भर देना, कैटेगरी भैया अपना. तो सपोज मैं EWS सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट, कास्ट वास्ट सब आ गया, कास्ट ट्राइब नेम आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सपोज आई पिकअप SC, ये सब विंडोज यहाँ पे टैब एक्टिवेट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, सपोज तो मैं जो भी क्लिक करूंगा ST, यहाँ पे फिर वो टैब आएंगे. लेकिन मैं अगर जनरल क्लिक करूंगा, देखिए टैब गायब हो गया. हैव यू ऑब्जर्व दैट? द मोमेंट आई पिक अप एनी कैटेगरी यू गेट द टैब्स. नाउ सपोज आई टिक द PWD कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये देखो ये सब आ गया. डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्ट, वुड यू ब्रिंग यू स्क्राइब फॉर द टेस्ट. अब स्क्राइब को मैंने अगर यस किया, कैंडिडेट हैज टू कैरी अ स्क्राइब एफिडेविट, जो हमने होम पेज पे देखा था वो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, बट आपके लिए नहीं, तो इसको नो कर दीजिए, सब गायब हो गए. ओके, प्लीज एंटर अ वैलिड एड्रेस. सिर्फ एसेंशियल भर देता हूं मैं ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए. कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया, आप पूरा भरिएगा. स्टेट महाराष्ट्र M में दूसरा आता है, ये महाराष्ट्र ऊपर ही आ गया. चलो अच्छी बात है. पुणे, पुणे 411007. तुम ऑल्टरनेट नहीं है काम MT और मेल. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक ना एक डालना जरूरी है. ठीक है, हे भगवान, डाल देना कोई भी नंबर. अब मेरी इच्छा हो रही है कैट देने की, तो मेरे को मेरे मॉम का नंबर याद तो नहीं है. आई डोंट थिंक शी वुड माइंड एनीवे. तो कोई भी नंबर यहाँ डाल दीजिएगा. ठीक है, मेरी मॉम का नंबर पता चल रहा है आपको, कंप्लेंट मत कर देना, बकवास आदमी है करते हैं, उनको मालूम है. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको आपकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है. ठीक है, उसके बाद ये पूरा चेक कर लेना एक बार ऊपर से नीचे पूरा अच्छे से. ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू. देखिए अब कोई भी फील्ड इनकम्प्लीट रही अपलोड नहीं करने देगा, ध्यान रखना. ओके, देन यू गो टू एकेडमिक्स. अब यहाँ पर कुछ गड़बड़े हो सकती है. राइट, अपना क्या है, पहले SSC का बोर्ड अपना क्या था, महाराष्ट्र. हाँ, CBSE वगैरह तो था नहीं यार. 10th was अप्रैल, बहुत पीछे जाना पड़ेगा. 1990 मैक्सिमम मार्क्स थे शायद 700. हाँ 700. और मेरे को कितने मिले थे,
544 आई थिंक 544 परसेंटेज था मेरा 78.57। अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों को वो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, यूजुअली आपका जो मार्कशीट रहेगा 10th का 78.57 ही तो, मैंने क्या इनकरेक्ट एंटर किया। ओके, NN, हाँ 78.57, हाँ ठीक है। तो अभी याद रखिएगा आपका जो मार्कशीट रहेगा 10th का, ठीक है, उसके पीछे लिखा रहेगा वो CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करना, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यूजुअली आई थिंक CBSE का CGPA इंटू 9.5 होता है, मतलब अगर आपका 8 CGP है तो 8 into 9.5 would be the percentage, और 9.5 is considered to be the standard conversion factor। अगर पीछे स्पेसिफाइड है तो ठीक है, पीछे अगर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटू 9.5 कीजिएगा। आर वी क्लियर? ओके, यहाँ पे मेरा परसेंटेज एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को, हाँ परसेंटेज यहाँ पे मार्क्स के साथ टैली नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कम परसेंट क्यों बताऊँ, 78.57 है ना मेरा, मेरे को मार्क्स याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे वो परसेंटेज 77.71, ठीक है। कोर्स 12, बाप रे ये तो और भी एम्बैरेसिंग है। 12th इक्विवेलेंट डिप्लोमा, यहाँ पे फिर से वो दिक्कत आने वाली है आपको। ओके, तो रिमेंबर CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करना, मार्कशीट के पीछे आपके लिखा है, अच्छी बात है। मार्कशीट के पीछे नहीं लिखा है तो स्ट्रेट 9.5। ओके, तो 12th इक्विवेलेंट था हमारा, 12th था मतलब बोर्ड वाइड महाराष्ट्र 1992, अप्रैल 1992। डिसिप्लिन साइंस था हमारा, कैन यू बिलीव इट, मैक्सिमम मार्क्स था 600, मेरे को मिले थे 434। ओके, परसेंटेज कैलकुलेट करो भाई साहब, 434/600, 63 कुछ आएगा शायद, नहीं 670 कुछ आएगा शायद। 434/600 72.33, हाँ मेरे को 62 लगता था अभी तक, 72.33 आया है। अब आप बोलोगे कि सर आपको एग्जैक्टली कैसे याद है, आपको 434 मिले थे, इतने साल हो गए, 30 साल होता, 28 साल हो गए, ये याद रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे बड़े भाई को 12th में 600 में से 535 मिले थे, और मेरे को शगुन के तौर पे 101 मार्क कम मिले थे, इसलिए मेरे को याद है 434। ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट किडिंग। अब यहाँ पर देखिए, आर यू इन द फाइनल ईयर, improvement exam for class 12th, which should I fill for 12th? Okay, Sahil, your graduation has, you got admission into graduation based on which marks? Those are the marks you should fill. आपने ग्रेजुएशन अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बेसिस पे लिया है तो आपको वो मार्क्स लिखना पड़ेगा, अगर आपने नॉर्मल इससे लिया है तो आपको वो मार्क्स लिखने पड़ेंगे, और फर्क कितना था ये भी देख लो एक बार। आर यू इन द फाइनल ईयर? नो। हैव यू कंप्लीटेड? यस। ओके, अब सपोज आप इसका नो कर देते हो, सपोज इसको आप यस कर देते हो, अरे यार हाँ, तो ये पूरा आएगा, टोटल ड्यूरेशन, करंट, एग्रीगेट मार्क्स, ये सब आपको फिल करना है, राइट। और नीचे कुछ, इफ यू हैव अ ड्यूअल डिग्री विद बोथ मास्टर्स एंड बीटेक्स, कुछ कॉलेजेस हैं जो 5 ईयर प्रोग्राम देते हैं, राइट। 5 ईयर में आप सीधा एमटेक बन के निकलते हो, राइट। तो उनका एक 10th एंड 12th इज ऑल सब्जेक्ट्स अनुभव, 10th and 12th is all subject, best of 4, best of 5 नहीं, 10th and 12th is all subjects, remember that.
Okay, graduation say it's based on what your college gives you in the mark sheet. तो कुछ colleges होते हैं, if you are see there are some universities, आपका BE चल रहा है क्या हूँ? Are you doing your BE currently? Okay, then you fill up the marks of the last semester, जिसका रिजल्ट आपको मिला. If you have completed your BE, most of the colleges in India giving a BE or BTech give your final year percentage based on the last 4 semesters का aggregate. Okay, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th का aggregate. तो उसके ऊपर से अगर आपका graduation complete नहीं हुआ है अभी तक, तो आपका लास्ट मार्कशीट ऑब्टेन के डिटेल यहाँ एंटर करना है. अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आपको देखना पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ओनली द लास्ट सेम और द लास्ट 4 सेमेस्टर्स और द लास्ट 3 ट्राइमेस्टर्स और व्हाटएवर, उसके बेसिस पे आपको फिल अप करना है. आई होप द डाउट इज क्लियर. नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बस मार्कशीट देखनी है, परसेंटेज डालना है, खत्म. अगर आई अगेन रिपीट, उससे क्या होता है, आप मार्कशीट देखो ना उज्जवल, उसमें समझ जाएगा आपको फाइनल, अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो मार्कशीट में आई थिंक आखिरी 4 सेमेस्टर रहेंगे आपके. आप मार्कशीट देखोगे पता चल जाएगा आपको. आई थिंक पुणे यूनिवर्सिटी फॉलोज द लास्ट 4 सेमेस्टर्स. हमको जैसा बीकॉम में नागपुर यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का परसेंटेज कैलकुलेट हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन द टोटल ऑफ द 3 इयर्स. परसेंटेज कौन से बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है वो देखना पड़ेगा. नहीं तो आप मार्कशीट मेरे को एक बार फ्रंट और बैक मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ. बस देन मेंशन ओनली द फाइनल ईयर. मोर देन 1 डिग्री में बीबीए आईबी भी है क्या, मतलब समझे नहीं. क्वेश्चन ध्यान से पूछिए प्लीज. राइट, अगर ड्यूअल डिग्री की बात कर रहा था मैं, सम कॉलेजेस ऑफर अ 5-year कोर्स एंड यू डायरेक्टली कम आउट एज एन एमटेक. उसके बाद अगर आप कैट दे रहे हो तो कॉलेज का ही रूल होगा कि पहले 4 साल का बीई रहेगा, आखिरी का 1 साल एमटेक रहेगा, या 3.5 साल बीई रहेगा, आखिरी का 1.5 साल एमई रहेगा, या जो भी है. तो आपको कॉलेज के रूल्स फॉलो करने हैं. राइट, ओके. इफ यू हैव मोर देन 1 डिग्री, सपोज यू क्लिक दिस, अब ये सब भरूंगा नहीं तब तो क्लिक नहीं होगा. बीकॉम प्लस एलएलबी, तो आपको हर डिग्री के डिटेल यहाँ पे भरने पड़ेंगे. You fill up this basic degree and then you say click here if you have more than 1 bachelor's degree. आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक और फील्ड ओपन होगा. और कुछ कॉलेजेस हैं जो ड्यूअल डिग्री देते हैं बीकॉम प्लस एलएलबी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की, उसके डिटेल्स आपको यहाँ भरने. अगर मास्टर्स डिग्री किया होगा यहाँ, प्रोफेशनल डिग्री, यस, सीए, कंप्लीटेड, ये भरने में हमेशा अच्छा लगता है. कोई तो फायदा हो सीए करने का. नेम ऑफ प्रोफेशनल डिग्री सीए, देखा 3 ही है, सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस. फाइनल एग्रीगेट मार्क्स 50% पासिंग था. मेरे को कितना आया था, 414, 800, 52 रफली. कमेंसमेंट था अप्रैल, जून 93. कंप्लीशन नवंबर. आप लोग पैदा भी नहीं होते ना तभी. तो इस तरह से अगर कोई फाइनल डिग्री है आपकी तो आपको इस तरह से उसको फिलअप करना है. ठीक है. I am in the final year of B, but I have one backlog in T. How can I mention aggregate marks? And mention your aggregate marks along with the backlog. That is the most honest thing that you can do, right? But ensure that when you are mentioning your total marks along with the backlog, it's not falling below 50%. क्योंकि eligibility criteria 50% है. Have you understood?
ओके, चलिए, तो ये भर दिया आपने। अब आपका है वर्क एक्सपीरियंस। ये तो आप सीधा क्रोनोलॉजिकली भरिएगा, मैं भरने लगूंगा तो फिर 1 घंटा उसी में लग जाएगा। तो आपका आखिरी में टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन डेज आएगा, राइट। स्पेसिफाई इंडस्ट्री, मेरा तो एजुकेशन ही रहेगा, जो इसमें है ही नहीं। देखो, एजुकेशन है ही नहीं, नो वन टेक्स एजुकेशन सीरियसली। चलो डाल के देखते हैं। मेरा है अदर्स, एजुकेशन स्टार्ट डेट वाज 2 April 2000। यार 2000 April 2। नो, करेंटली चल ही रहा है 31 जुलाई ना, तो वही डेट डालना पड़ेगा, 31 जुलाई। ओ माय गॉड, 7426 days। ओके ओके, इसको सेव एंड कंटिन्यू। ये बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके, अब वर्क एक्सपीरियंस में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक नहीं बहुत सारी चीजें। Work experience, according to the IIM people, is defined as any work you have done after graduation where the relationship was employer and employee. Internships are not counted because first of all, they are before you complete your graduation. Secondly, the relationship is of a teacher and the student, not an employer and an employee. Rohit Rathod, is family business counted? Yes, provided you have done it after graduation. You have to get a letter from the owner of the business saying that you have been appointed in such and such position, right? And they might, because it's family business, they may go to the extent of asking you your bank details. If you do that, more deposit दिखना चाहिए सैलरी का जनरली, और पे स्लिप तो आपको लेके ही जाना है। ये सब चीजें अगर हो सकती हैं तो yes counted, but it has to be necessarily after graduation. ओके, वर्क एक्सपीरियंस बेनिफिट्स मैंने आपको बोला था प्रोफाइलिंग में काम आता है। ओके, राइट। टीए की आर्टिकलशिप इज नॉट काउंटेड एज वर्क एक्सपीरियंस। यस, यू हैव टू मेंशन बोथ वैशाली, यू शुड मेंशन बोथ रादर। अब यहां पर देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। ये पूरा अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, करेक्ट, बट ये कुछ हद तक ये भी दिखाता है कि वो कौन से वर्कर्स को ज्यादा वेटेज देते हैं। So you leave it blank, leave it blank. Remember, जब सिस्टम इनफॉर्मल हुआ करता था आपको ऐसी पॉइंट्स नहीं मिलते थे। ये जो क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल, दिस यूज्ड टू गेट द मैक्सिमम वेटेज। यहाँ के 6 महीने और आईटी के 2 साल एक बराबर। सेकेंड प्रेफरेंस वाज, सेकेंड इंपॉर्टेंट वाज ऑटोमोबाइल, इसको सेकेंड प्रेफरेंस देते थे। थर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, फोर्थ एफएमसीजी, फिफ्थ ड्यूरेबल्स, सिक्स्थ फार्मास्यूटिकल्स, सेवेंथ आईटी, और रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस एकदम आखिरी में होते थे। नॉट मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये आपको वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स पूरे फिल करने हैं। रिमेंबर इन डेज एज ऑन जुलाई 31, 2020, राइट। तो एंड डेट, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो एंड डेट डिफॉल्ट सेटिंग है। देखिए जैसा मैंने सेलेक्ट किया था, मैं 31 जुलाई के आगे जा ही नहीं सकता हूँ यहाँ, ठीक है। तो एंड डेट 31 जुलाई ही रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर गैप है तो क्या? अब गैप है तो है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहीं से वर्क एक्सपीरियंस लेटर अगर जमा सकते हो, राइट, कोई फ्रेंड, कोई चचा की कंपनी है, या कोई फ्रेंड के दोस्त, फ्रेंड के पिताजी की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, या फ्रेंड का कोई स्टार्टअप है,
आपका सपोज ग्रेजुएशन 2020 में हो गया है और आप कैट 2020 दे रहे हो, तो दिक्कत ये है दैट योर इंटरव्यू वुड बी इन मार्च 2001, मार्च 21, ओके, एंड देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 ईयर। ये गैप तो आपको फिल तो करना ही है, राइट? कोई और तरीका अगर आपको सोचता नहीं है तो आपका कोई दोस्त का स्टार्टअप हो, कोई चचा का बिजनेस हो, तो वहां से आप एक लेटर ले लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा एक्सपीरियंस। लेकिन रिमेंबर, इंटरव्यू में डिफेंड करना पड़ेगा, इंटरव्यू में डिफेंड करना पड़ेगा, बिकॉज एंड सी दे डोंट वांट, if you go there in March 21 and you have completed your graduation in 2020, what they want is you have done something in that 1 year to add value to yourself. Why did you take a break? Sir, I was preparing for MBA entrance. This is not acceptable as an answer, because they think you don't need to prepare for MBA entrance. ठीक है, कुछ ड्रॉप आउट्स होते हैं तो आप इस चीज पे सोचिएगा जरूर, ठीक है, कि क्या करना है। अगर आप नहीं जमा सकते तो ठीक है, कुछ मत कीजिए, लेकिन आपको इंटरव्यूअर को बताना ही पड़ेगा कि आप साल भर घर पे नहीं बैठे थे, आपने कुछ किए थे। तो एक तो लॉकडाउन का बहाना है आपके पास, आप नौकरी ढूंढने निकले लेकिन कोई जॉब मार्केट में रिसेशन था, ये बहाना चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अगर आप कुछ कोर्सेस कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा जो MBA से रिलेटेड हो, जैसा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, उसका सर्टिफिकेट आ गया, तो ये सब चीजें आपको काम में आएंगी इंटरव्यू में, अभी नहीं। देन यू हैव प्रोग्राम्स, ये बहुत ही टीडियस सेक्शन रहने वाला है। मेरे को लगता है यू हैव टू फिल दिस फॉर्म लाइक यू आर वाचिंग आयरिशमैन, राइट? पहले people who didn't get that joke, Irishman is a 3 hour 29 minute movie. पहले ये 3 कॉलम भर दीजिए, ठीक है, और फिर चिल मारिए, अगले दिन आके बचा हुआ कीजिए। आई थिंक दैट वुड बी माय सजेशन। अगर आप एक झटके में कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट मारे हैं, देखिए। हाँ, अब ये है सारे IIMs, 20 होंगे अभी तो, राइट? ओके, अब देखिए IIM अहमदाबाद में, देखिए कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, 4 प्रोग्राम्स हैं IIM अहमदाबाद में। अब बेसिकली टारगेट कर रहे हैं पहले PGP, IIM अहमदाबाद PGP। इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आप पुणे में है, पुणे है क्या? नहीं, सीधा मुंबई। रिमेंबर, आप इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस डालेंगे तो सिर्फ ट्रैवल कन्वीनियंस देखिएगा, जस्ट फोकस ऑन द ट्रैवल कन्वीनियंस। ये मत सोचिए कि घर के पास है। अब इसमें दिक्कत क्या होने वाली है, अपने को नहीं पता लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, और निश्चित तौर पर आपके इंटरव्यूज फरवरी या मार्च 2021 में होने वाले हैं। ओके, नाउ सपोज यू आर वर्किंग इन Infosys, राइट? Infosys I think has given a work from home till 30th November, and you have gone back to your hometown. Your hometown is say Lucknow. Now what do you feel as an interview city preference? ये दिक्कत होने वाली है आपको। अगर आप रैशनली अज्यूम करेंगे लॉकडाउन, आई मीन Infosys अगर वापस आपको काम पे बुलाती है, आपको वापस पुणे आना है दिसंबर में, तो इंटरव्यू के टाइम पे आप रहेंगे पुणे में, तो मुंबई प्रेफरेबल है। तो यूजुअली मैं बोलता था भैया बिंदास पुणे में हो तो बिंदास आप हर चीज का मुंबई मार्क कर लेना, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस, राइट? द रीजन इज ट्रैवल कन्वीनियंस। ओके, वो सब रूमर्स है कि वहां पे कंपटीशन कम होगी, वहां का भरते हैं, वो सब रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन हर जगह सही है। पुणे में जो लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है, हर जगह पुणे मुंबई भर दीजिए, खत्म कर दीजिए बात। ओके, नाउ द प्रोग्राम दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर इज PGP, IIM Amritsar, Colsit and MBA. Okay. FABM is Agri Business Management. PhD इसको IIM अहमदाबाद पहले FPM बोलती थी, Fellowship Program in Management. Okay. You are not even eligible because you need to be a postgraduate. Right? लेकिन the rule is whenever in doubt select। अब सेलेक्ट ऑल भी कर लोगे ना एक झटके में, क्या फर्क पड़ने वाला है?
हर एक का प्रेफरेंस डालना है आपको बस। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, अच्छा, सेलेक्ट कॉल के बाद अनसेलेक्ट नहीं होता ये, दैट्स इंटरेस्टिंग। होता है शायद, पता नहीं। हाँ, होता। रिमेंबर वन मोर थिंग, ओके, आप ये कैट फॉर्म जो भर रहे हो ना, राइट, आप जो कैट फॉर्म भरोगे, इट्स एन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ओनली टू द 2-year रेसिडेंशियल एमबीए प्रोग्राम, जनरल एमबीए प्रोग्राम। अगर आपको एबीएम भरना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसका फॉर्म अलग से आएगा 400 या 500 रुपए का। अगर आपको अहमदाबाद का फॉर्म, आपको पीएचडी का फॉर्म भरना है, उसका फॉर्म अलग से आएगा 400-500 रुपए का। वो एडिशनल फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक में एमबीए, पीजीपी वगैरह जो है वो सेलेक्ट है। आई एम अहमदाबाद में भी इतने सारे प्रोग्राम है। आई एम बैंगलोर पीजीपी, ओके। इंटरव्यू सेंटर प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। और कैट का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो या तो पुणे लीजिए, या आप जो शहर में है वो लीजिए, या आप जो शहर में उसके सबसे पास कौन सा शहर है वो लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया, आई एम जम्मू, आई एम कोझिकोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट सिटी, ये आया अगला पॉइंट। प्रोग्राम्स में कोई डाउट? सुन रहे हो कि सो गए हो भाई साहब? प्रोग्राम्स में कोई डाउट? क्लियर? ओके, देन यू कम टू द टेस्ट सिटी। 6 प्रेफरेंसेस है आपके पास, ओके। प्रेफर टेस्ट सिटी 1, द सिटी यू आर इन। नागपुर है क्या टेस्ट सेंटर? होना तो चाहिए। मैंने नागपुर को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता हूँ, सही। ठीक है, नागपुर है टेस्ट सेंटर। नांदेड़ भी है यार, नागपुर तो हो गई। तो टेस्ट सेंटर 1, द सिटी यू आर इन। टेस्ट सेंटर 2, द सिटी यू एक्सपेक्ट टू बी इन ऑन द डे ऑफ कैट, दैट इज 29 नवंबर। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, अभी आप लखनऊ में हैं और आपको लगता है कि आपको पूना बुलाया जाएगा। आप इंफोसिस में काम कर रहे हैं और आपको लगता है वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा, आपको पूना बुलाया जाएगा। तो पहला सेंटर लखनऊ होना चाहिए और दूसरा सेंटर आपका, मैं पूना डाल देता हूँ, गलती से सेव हो गया, नागपुर जाना पड़ेगा कैट में। अच्छा, एक और चीज है, हैव यू अंडरस्टूड? प्रेफर्ड टेस्ट सिटी 1, दैट योर होम टाउन, जहां पर अभी आप हो, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर चले गए होंगे। टेस्ट सिटी 2, आप जिस शहर में काम कर रहे थे, अगर आपका जॉब अभी भी है तो, ओके। 3, 4, 5, 6 सब आप ट्रैवल कन्वीनियंस पे, एक घर के पास, एक ऑफिस वाले शहर के पास, एक होम टाउन के पास, एक ऑफिस वाले टाउन के पास, ओके। रिमेंबर, मैं ये घर वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस साल लॉकडाउन है, नहीं तो मैंने सबको पुणे ही बोला रहता, जो पुणे में सब पुणे बोलते, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेस्ट सिटी, हमने पुणे। एंड रिमेंबर, पूरे 6 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। पहला पुणे सेलेक्ट करा, दूसरा गोवा करता हूं मैं। गोवा है क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोवा देखो, गोवा इज नॉट अ टेस्ट सेंटर। पणजी में क्या? पणजी, पानीपत कौन जाएगा मेरे भाई? तो दूसरा मुंबई कर लो, तीसरा कर लो दिल्ली। मैं रैंडमली कर रहा हूँ, आपने नहीं करना है ऐसा। तो ऐसा पूरे 6 से सेंटर आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर आप सेव कंटिन्यू करेंगे, फिर आप पेमेंट पे जाएंगे। तो पेमेंट आपको जो भी करना है। $2000, हे भगवान। अच्छा, वहां जनरल कैटेगरी भरा था ना, इसलिए 2000।
फिर आपका प्रीव्यूड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल डेटा, आई एग्री एंड सबमिट, तो आपका फॉर्म चले जाएगा। रिमेंबर जनरल कैटेगरी लिए 2000, अब पर्सनल डिटेल्स में जाके आपने सपोज ठीक है SC चुना एंड देन यू गो टू पेमेंट, हाँ 1000, एनी डाउट्स करके देख लो, क्या टेंशन। नॉन क्रीमी ओबीसी 2000, सभी देख लेते, मजा आ रही मेरे को इसमें। आपको कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा अभी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। पनाजी था, हाँ देखा मैंने। I don't think so. You fill up the form quickly, Antrix, you'll get your first preference. And आप वो लोग क्या करने वाले, आप इस पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आपको क्या करना है ये देखो, बाकी किस में करो। ये है फॉर्म फिलिंग। Any doubts that you may have, please ask. अब आप यहां पर जब जाएंगे मेन पेज पे, रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन आईएम इंस्टीट्यूशन से देखिए, नॉन आईएम इंस्टीट्यूशन यूजिंग कैट स्कोर्स। वो उस पे आया हूं मैं। IIM Indore is coordinating for IIM CAT in our non-IIM CAT membership. Following steps are required: application form, memorandum of understanding. तो आप अगर MDI वगैरह भरना है तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस चाहिए आपको। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। कितना है फीस दिया है क्या आपको? नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस, उसकी फीस अलग रहेगी, वो याद रखिए। कैट को तो आपको नॉन रिन्यूएबल एनुअल फीस देना ही है। कितनी है ये शायद आपको एप्लीकेशन फॉर्म या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे मिलेगा। तो नॉन आईएम इंस्टीट्यूट जो हैं, जो एमडीआई वगैरह, तो सबसे पहले यही होम पेज पे कैट 20 IIM कैट पे एक लिंक है, रजिस्टर फॉर नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस फॉर कैट 2020। इस पे रजिस्टर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख ही लेते हैं क्या है। ये है एप्लीकेशन ओपन। अरे बाप रे, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने प्रोसीजर। नहीं, सॉरी, राइट। एप्लीकेशन लेटर ऑफ नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस, ये नॉन आईएम इंस्टीट्यूशंस को ये लेटर भर के देना है, आपको नहीं देना है। सो सॉरी। अच्छा, वो देख लिया हमने। Remember, this clip is to be used by non-IIM institutions who want to register. But that's a very interesting point, if you have observed. 2.5 लाख लोग लेते हैं ये लोग हर 20 स्कूल से। देखिए यहाँ नीचे लिखा है, details of annual membership with 2,50,000 annual fee plus INR 90,000 membership fee for new members who did not register for CAT 2000 plus 18% GST. Oh my God. हाँ, anyway, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको ये फॉर्म नहीं भरना है।
right? This is for the institutions like MDI etc. who have to fill up this form. आपको सिर्फ आपका ये फॉर्म भरना है. ये हो गया कैट का, राइट? अब इसके बाद अंकित मेरे पास भी नहीं है. सॉरी, वो मैंने गलत पढ़ लिया था थोड़ा सा. एक मिनट. Last written exam, but when you have your third year term exam, when will you have your third year term exam? Nitish? तो मार्च 2020 हुआ नहीं है ना अभी तक एग्जाम? अरे हाँ, बिना एग्जाम के प्रमोट हुए ना आप लोग. वेरी गुड, वेरी गुड. सितंबर 2019 का लेकर नॉट प्रमोटेड. तो लेटेस्ट अवेलेबल लिखिएगा और क्या. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू. हाँ, तो जो लेटेस्ट मार्क्स जो अवेलेबल है वो लिखिए आप. मैं वही तो बोल रहा हूँ तब से, राइट? अब ये इंस्टीट्यूट्स का कैसा. नाउ रिमेंबर, विद द कैट एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव अप्लाइड टू ओनली द IIMs. व्हाट अबाउट अदर इंस्टीट्यूशंस? लेट्स टेक MDI गुड़गांव फॉर एग्जांपल. MDI का वेबसाइट ओपन करके देखते हैं उनका नोटिफिकेशन कब आने वाला है. नोटिफिकेशन MDI गुड़गांव. अब नोटिफिकेशन के पहले मैं आपको बता देता हूं कि MDI गुड़गांव की लास्ट डेट 22 नवंबर रहेगी. ठीक है. हाँ, तो ठीक है, अभी तक उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया नहीं है. रिमेंबर, MDI का नोटिफिकेशन अलग से आएगा. ये इंपॉर्टेंट एडमिशन डेट्स 2020 MDI गुड़गांव. लेट अस सी. कैट 19 पिछले साल का है, अभी तक न्यू करके इन्होंने अपनी वेबसाइट रिफर्बिश नहीं किया. मेरा एग्जाम इज्जत उतर गई है इंस्टीट्यूट की मेरी नजरों. एनीवे, सो MDI गुड़गांव विल हैव इट्स ओन प्रोसेस, राइट? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैंने, सो सॉरी. जस्ट अ सेकेंड. आप जब MDI की वेबसाइट पे जाएंगे, राइट, तो MDI का नोटिफिकेशन अभी आने का है, बट MDI का अलग से नोटिफिकेशन आएगा. इन दैट दे विल मेंशन व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई टू MDI, राइट? Every B school which takes the CAT score, you have to fill their form separately. Please remember that. Yeah, suppose you go to MDI website, okay? हाँ, तो यहाँ पर MDI का नोटिफिकेशन आएगा, राइट? You have to go through that notification. MDI का उनका फॉर्म फिलिंग का एक लास्ट डेट होगा, उसके हिसाब से आपको MDI का फॉर्म भरना है और उनकी फीस अलग 1800 रुपए तक रहने वाली है. ओके, एंड MDI, every institute which takes the CAT score, okay, you have to apply to that institute independently. MDI का अलग एप्लीकेशन आएगा, SPGN का अलग एप्लीकेशन with a different deadline आएगा, right? And please remember, some deadlines are before the CAT itself. MDI, if CAT is on the 29th November, MDI typically would be on the 1 week before CAT. MDI का deadline would be 22nd November. और MDI की फीस अलग से रहेगी, याद रखिएगा, right?
You can take an average of 1800 per institute. 1800 नहीं 2000 ही ले लो. रिमेंबर ये MBA एंट्रेंस फॉर्म्स का जो प्रोसेस है इसमें आपके कुछ 30,000 35,000 रुपए खर्चा हो सकते हैं, होंगे ही. तो प्लीज उतने का इंतजाम करके रखिएगा. जो लोग वर्क एक्सपीरियंस हो रहे होंगे तो आपका तो सेविंग होगा ही ना, अगर आपने उड़ाया नहीं होगा तो. कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. यस विल कम टू दैट. कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 35-40,000 अगर बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, आपको बड़ी अमाउंट नहीं भी लगे, अपने पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म करके रखिएगा. आखिरी वक्त उनको झटका देना बिल्कुल ठीक नहीं है. ठीक है. यू विल बी नीडिंग रफली 35 to 40K, और अगर आपको रिस्क बराबर स्प्रेड करना है तो 40,000 टू फिल अप द फॉर्म्स. ओके, इतने पैसों का इंतजाम करके रखिएगा. प्लस अगर आप फाइनल सेमेस्टर, आपकी फाइनल एग्जाम, क्लियर एग्जाम भी अगर मार्च और अप्रैल में होने वाली है, राइट, और आपको कहीं दिल्ली वगैरह फ्लाइट से आना जाना करना पड़ा तो उसका दिक्कत अलग होने वाला है. मुंबई जाके होटल का स्टे वो अलग होने वाला है, राइट. रिलेटिव वहां नहीं है तो रिमेंबर, फॉर्म्स पे ही करीब 35 से 40,000 खर्चा आपके होने वाले हैं. प्लीज घर पे बता के रखिएगा. ओके, तो क्या हो गया. Now let's come to IIFT. IIFT का डेट आ चुका है, 6 दिसंबर बोल रहे हैं. It is usually the next Sunday after CAT. तो उसके हिसाब से the next Sunday after CAT is 6 December 2020. But I have my own reservations whether they will have the test on 6 December 2020 because भारत में तब क्या बोलते हैं उसको, धर्म निरपेक्षता का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता है ऑन 6 दिसंबर. एनीबडी हु नोस क्या हुआ था 6 दिसंबर को. हाँ, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद वाज डेमोलिश्ड. ओके, एंड दिस ईयर the construction has begun on 5th August. Okay, so I don't expect things to be normal on the 6th of December this year. Okay, so we don't know, but let's assume IIFT ने डेट तो अनाउंस किया है, right. Remember, हर कैट एफिलिएटेड का फॉर्म अलग भरना है. जैट और कॉम्प्लेक्स है, एक्सएटी का फॉर्म अलग है, एक्सएलआरआई का फॉर्म अलग है, स्नैप का फॉर्म अलग है, SCMHRD का अलग है, SIBM का अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का अलग है. कैट के फॉर्म से आप 20 IIMs को तो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहे हो. जैट में ऐसा नहीं है. आपको एक्सएटी का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, XLRI अलग भरना पड़ेगा, XIMB अलग भरना पड़ेगा, एंड सो ऑन. ये याद रखिएगा. ओके, राइट. तो ये जनरल बी स्कूल्स हो गए. तो जनरल बी स्कूल्स में क्या बोला था मैंने, एडमैट का तो edmat.org पे जाइए, सीधा पूरा प्रोसेस अवेलेबल है. लेट अस सी प्रोसेस आ गया कि नहीं इस साल का. देख लेते हैं ना, सब वेबसाइट्स लगे हाथों, बाद में क्यों टेंशन लेना है आपको. सेम प्रोसेस. $666 होना चाहिए था, नहीं मजा ही है. वहां पे अपने को 786 मिला था कैट में. अब सबका कैट अच्छा होने वाला है, बहुत ही मुबारक नंबर आया. इफ यू बिलीव इन दैट इज एक्सेप्टिंग बी स्कूल्स, पूरी लिस्ट है यहाँ पे, राइट. तो देखो कौन सी है. अच्छी तो एक भी नहीं होगी. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हाँ. अब यहाँ पे IS भी दिख तो रहा है आपको. नीचे क्या है, एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स ISB, इसका स्कोर एक्सेप्ट हो रहा है. जनरली ISB का जो 18-month MBA, दैट्स अ डिफरेंट कोर्स, दैट्स नॉट MPBA, दैट्स GBA.
That is GMBA, the 18-month ISB का flagship program. अब SP जैन बोला है, लेकिन PGMPW, not the main PGPN course. तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद अगर आपको जाना है, सबसे पहले उसका बजट बहुत ज्यादा है। सेकंड, GMAT इज प्रेफरेबल, ओके, क्योंकि उनका प्रोफाइलिंग वगैरह का गेम बहुत अलग है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो now you have some specialized institutes, okay, like Mudra Institute of Communications Ahmedabad. This is only communications management, product management, brand management, communications management. If you are interested in that field, then maybe you should fill up the MICA form also, okay, then maybe you should fill up the MICA form, right. You have Institute of Rural Management, Anand, right? This is only if you are interested in rural management, exploring alternate livelihoods for the rural folk of India, right? Or joining companies which make products which cater to the bottom of the pyramid, okay? Yeah, work in the ITC Chopal वाला जो था, food processing and marketing industries, ये सब जगह रूरल मैनेजमेंट वालों को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। ये एक हो सकता है। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन द नेचुरल वेल्थ द कंट्री पोजेसेस एंड यू वांट टू एनहांस इट, देन यू शुड गो इन फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM भोपाल, ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट, वेरी लेड बैक, एकदम सरकारी चलता है। यहाँ प्लेसमेंट के लिए MO मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट वाले जो हैं उनको उधर के सेक्रेटरी लेवल के लोग आते हैं। कुछ साल पहले जयराम रमेश गया था यहाँ प्लेसमेंट के लिए, राइट। आप फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं। Tata Institute of Social Sciences, their flagship program is MA in HRM, which is as good as MBA in HR. उसके अलावा उनके और 17-18 प्रोग्राम, आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो चॉइसेस बहुत हैं। कन्वेंशनल चॉइसेस मैंने आपको बता दिए, राइट। तो आपको बेसिकली कन्वेंशनल MBA के लिए द एग्जाम्स यू नीड, यू मस्ट अपीयर फॉर CAT, IIFT एंड MAT, राइट। बैकअप ऑप्शन चाहिए ना, ओके। अब what are the institutes you should apply for to CAT? Let's take a look at that, okay. Through CAT, okay, the top level institute IIMs तो आ ही गए। Apart from that you have FMS, MDI, NITI. Of course, how could I forget? SP Jain में remember one thing, when you fill up the SP Jain form, okay, then you have to mention the specialization there itself, ध्यान रखिएगा, okay. So to CAT, FMS, MDI, NITI, SP Jain, this would be the top rung of these schools, right. At the next level, maybe you have IMT, Ghaziabad, next level I would say it should be IIT Bombay, then IMT Ghaziabad, not Nagpur, IIT Delhi, IIT Kharagpur, right. Now remember, in case of IITs, the IITs wait till you get the CAT percentile and then ask you to apply. The others don't wait for the CAT percentile. You just have to apply based on how confident you are feeling, because ये सब top percentile वाले colleges। अगर आपको CAT के through backup options चाहिए, तो you have
Tapni Manipal. You have Nirma Ahmedabad. There is a preschool in India called Nirma, founded by Karsan Bhai Patel, the person who founded Nirma also. So you have Tapni Manipal, you have Nirma, you have IMI Delhi, you have KJ Somaya Mumbai. ठीक है, अब ये लेवल पे बहुत सारे बी स्कूल से मेरे को जो टॉप 4 याद है मैंने आपको बता दिए, बाकी बहुत है, इंडस स्कूल ऑफ बिजनेस, अलायंस बिजनेस, बहुत सारे, ठीक है। आगे सवाल, हाँ न्यू बेबी आयम्स भी इंक्लूडेड ही है ना, तो मैं वो तो कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, न्यू आयम्स बेबी आयम्स में कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, आयम शिलोंग में कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैट का फॉर्म भरा, वो सब जगह तो अप्लाई कर ही दिया आपने। हाँ दे आर ओके एज अ बैकअप, बट अगर आपका एफएमएस में हुआ और न्यू आयम्स में हुआ, बिंदास एफएमएस जाना, न्यू आयम्स मत जाना। रिमेंबर वो टॉप 15 की लिस्ट जो स्टार्टिंग में दी थी, फॉलो कर। बाकी और भी 20 स्कूल्स हैं, ये मेरे को सबसे पहले याद है क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स ने यहाँ से एमबीए किया, ठीक है। तो कैट के थ्रू दीज आर द इंस्टीट्यूट्स दैट यू शुड अप्लाई फॉर। रिमेंबर एवरी इंस्टीट्यूट हैज गरिमा अवॉइड, Sikkim Manipal avoid, please. Do not get into controversies. We'll have to check this year. Okay, I think this year they have changed. It's only through CET. या फिर JBIMS का सर प्रोसेस बहुत अलग है उज्जवल, बहुत अलग है। Okay. Have you understood CAT affiliated? So, are you talking about Lovely Professional University, Vikas? Are you talking about Lovely Professional University, Vikas? Sorry, you started that way. Okay. Symbiosis, of course, the best in Pune, no doubt about it. SIBN, SPM, HRD, SIIB, very good colleges. Through CET, you have Pumba, Pune University MBA. Yeah, but LPU मतलब कौन सा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे हो क्या आप? ये बताओ। इंटरनेट से कोई भी इंस्टीट्यूट उठा के, हाँ, नो, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. It's not in the top 50. Nope. ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं अभी, उनका नोटिफिकेशन आने को बहुत टाइम। ऑफ कोर्स आने दो, आप फिलहाल बेसिक इन्फो आ गई आपके पास, ठीक है। अब एमिटी या फ्लेम, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि वहां पे जाके फिर दिक्कत होगी आपको। मैंने आपको मेरे टॉप 15 बता दिए। माय एडवाइस इज वेरी सिंपल, वो टॉप 15 में हुआ तो आंख बंद करके जाना, वो टॉप 15 के अलावा कहीं हुआ तो आंख और कान खुले रख के जाना, सिंपल। अब जाना है कि नहीं ये सोचना पड़ेगा, राइट। और रिमेंबर द बेसिक रूल, फर्स्ट लेट द बी स्कूल डिसाइड अपॉन यू, देन यू डिसाइड अपॉन द बी स्कूल। सबसे पहले आप बजट फाइनल कीजिए, आपका कितना पैसा आप स्पेयर कर सकते हैं, राइट। Second, are there any locational constraints? For example, in case of girls, I really don't think your parents, and even in case of boys, I don't think your parents will appreciate the idea of you doing an MBA from Goa. हालांकि गोवा में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, गोवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायबंदर. It's a very good institute, but you tell your parents that you want to do an MBA from Goa, and they'll ask you, really, which specialization? Right? Usually, girls जो हैं, your parents would like you to do an MBA from a place जहां आपके घर से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी हो. Okay? Girls who are from Maharashtra, I really don't think your parents would appreciate the idea of you doing an MBA from Ghaziabad or Gurgaon, howsoever good that institute may be. You got this?
तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इतना सिंपल नहीं है घर वालों को मनाना। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है आपको। आपको पहले आपका बजट डिसाइड करना है, फिर आपको आपके लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, राइट। उसके बेसिस पे फिर आपको डिसाइड करना है कि भैया क्या कितने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एमडीआई नहीं कर सकते और एफएमएस नहीं कर सकते तो नीति और एसपीजेन कर लीजिए, फिर सीधा अगले लेवल पे आइए। आईआईटी बॉम्बे करने की जरूरत, आईएमटी गाजियाबाद, आईआईटी दिल्ली, इसमें आईआईटी खड़गपुर अप्लाई कर लीजिए। फिर टैप में निर्मा, आईएमआई दिल्ली, केजी सोमैया में से कोई एक कर लीजिए, क्योंकि परसेंटाइल उतना ही है ना। So you'll have to diversify your risk properly based on the budget that you have and the locational constraints that you might face. Please remember that. Clear? तो कैट के थ्रू ये इंस्टीट्यूट से आप रेगुलरली एस्पिरेशन पे जाते रहिए, करियन के थ्रू वेबसाइट पे जाते रहिए। जो जो बी स्कूल्स के फॉर्म्स आते हैं वो रेगुलरली उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और आप अगर मेरे से पूछेंगे कोई बी स्कूल में अप्लाई करूँ कि नहीं, मैं सबसे पहले बोलूंगा आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि मैं उसी बेसिस पे बता पाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो किसी को तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी नीडेड टू गिव आउट टुडे। एनीवे, कैट के बाद आपको एग्जाम्स अपीयर करना है, तो मैंने बता दिया आपको। एक्सएटी के थ्रू यू हैव ऑफ कोर्स एक्सएलआरआई जमशेदपुर, then you have XIME Bhubaneswar, which is considered to be a very XIM Bhubaneswar, sorry, Xavier's Institute of Management Bhubaneswar, which is considered to be a decent institute. Then you have LIBA Chennai, Loyola Institute of Business Administration Chennai. तो ये 3 लेवल्स हो गए एक्सएटी के। स्नैप में तो आपको पता ही है, स्नैप में SIBM, SCM, HRD, SIYB, 3 तो कीजिए ही। उसके बाद स्नैप के थ्रू कोई इंस्टीट्यूट करना है कि नहीं, आई कम टू दैट। उसके बाद आपको स्नैप के थ्रू कोई इंस्टीट्यूट करना है कि नहीं, ये डिपेंड, अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है आपको कौन से स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि बाकी सारे स्पेशलाइज। अगर आपको एडवर्टाइजिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो इन फॉर SIMC, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ओके, माइका एनी डे, ट्वाइस ऑन संडे, 10 times when I'm trying. No, after filling the JAD form, we have to apply for XLRI separately. As far as the difficulty level is concerned, quality of questions wise JAD is way more difficult than CAT. Okay, remember that. So ये हो गया CAT, JAD, SNAP. If you don't have any better option, yes, go on Institute of Management. ये जो मैंने लेवल बोला ना, टैपनी, मणिपाल, निर्मा, IMI दिल्ली, ये लेवल में आता है, तो उससे बेटर लेवल नहीं है, प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। सर that depends on what kind of a person you are, उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब रिमेंबर IIFT बहुत डेंजरस एग्जाम है, क्योंकि सबसे पहले कैट के अगले हफ्ते होता है वो। सेकेंडली IIFT सरप्राइजेस देता है। IIFT 1 year had 6 sections, DA अलग, RC अलग, 2 सेक्शन हो गया, LR अलग, DI अलग, 2 सेक्शन हो गए, 2 और 2 4, मैथ्स एंड जीके। तो ये सेक्शंस अलग अलग होने से ये होता है कि आपको LR और DI का कट ऑफ इंडिविजुअली अचीव करना है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, LR पूरा करते हैं, DI एक सेट करते हैं कैच में, तो स्कोर अच्छा आ जाता है। बट मैंने LR DI स्प्लिट अगर कर दिया, मतलब ये दोनों सेक्शंस के कट ऑफ अलग हो गए, ये कट ऑफ आपको अलग अलग अचीव करते हैं, ये उसका मतलब होता है।
ठीक है। और IIFT का जीके में 2 साल पहले 15 क्वेश्चन थे शायद, कट ऑफ और 0.83 प्लस IIFT हैज अ डिफरेंशियल मार्किंग सिस्टम, but every question does not carry the same marks. Anyway, कैट के बाद आपके मॉक IIFT होंगे, मॉक IIFT के सेशंस भी होंगे वो वीक में, यू डोंट वरी अबाउट दैट, विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। जैक में डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन होता है, विल हैव अ कपल ऑफ सेशंस ऑन डिसीजन मेकिंग आफ्टर कैट, ओके। CET में एक होता है विजुअल रीजनिंग, जो कोई एग्जाम में नहीं आता, तो उसके थोड़े बहुत सेशंस आपके अलग से होंगे, या फिर आपने कैट CET मॉड्यूल ज्वाइन किया होगा तो आपका हो जाएगा। तो ये सब ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज सफिशिएंट, ओके। रिमेंबर, ईमेल आईडी बनाइए, उसमें फोल्डर्स बनाइए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला था वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक फोल्डर में रखिए, उसके बाद आप आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, ओके। वन मोर क्वेश्चन, मैंने ये भी बोला था हर फॉर्म का PDF आपको सेव करना है। इफ एनी बी स्कूल, जो आप बी स्कूल भरेंगे, इफ द फॉर्म हैज सम essay based questions, right, please get your answers checked before you send them by me, because if you don't let me check the answers, I wouldn't take the responsibility of defending those answers in the interview. It's a clear deal. If you show me the answer, get it checked, then of course I'll tell you how to defend it in the interview. Are we clear on this? There are some B schools which ask you an essay-based form. For example, FMS, what is your objective in life, right? SPJM में why do you wish to take up finance and so on. ऐसे कोई फॉर्म्स अगर आप भरते हैं तो ये आंसर्स प्लीज पहले चेक करा लीजिएगा मेरे से, उसके बाद ही फॉर्म फाइनल कीजिएगा, राइट। प्लीज डोंट सेंड एनी सच essay-based form without getting it checked by me. क्लियर? मेरा नंबर आप सबके पास है, राइट। मैं मेरा मेल आईडी भी दे देता हूं आप लोगों को, ओके। आई एम ऑन ऑल सोशल मीडिया, सम ऑफ यू हैव जॉइंड मी ऑन ऑल सोशल मीडिया, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म जिसमें ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस हैं बिना चेक कराए भेजना नहीं है आपको। आर वी क्लियर? ठीक है, राइट। So I think that summarizes everything. Thank you very much. Okay, chaliye, take care, all the best, take all necessary precautions. In case you have any doubt, don't hesitate to ping me up. Okay, chaliye, thank you, bye bye, take care, have a good day.